Hello friends, my name is Divyanshu and I have been trying and creating videos to help all the aspirants who are preparing for different law entrances, whether it's CLAT, MHCET, DULLB, BHULLB, PULLB, by using my experience and expertise that I had while cracking all these entrances like CLAT, DULLB and various other law entrances. Earlier I have created videos on national emergency and state emergency. So today I would be taking an important section, a vital part of law entrance, which is current legal affairs. I hope that you have subscribed this channel and please do share so that the other aspirants also get knowledge about the same. So today we will be starting off this PPT with reservation. So reservation has been a quite important topic when it comes to all the entrance examination, because there are various judgments which have come up recently regarding reservation. So in this PPT I have tried to cover all of them. So before I proceed with 104th Constitutional Amendment Act, there are certain amendments as they have been mentioned in this PPT that you must remember. First is 100th Constitutional Amendment Act, which deals with there was an exchange of territories between India and Bangladesh. Then after that it comes 101st Constitutional Amendment Act, because there was a tax reform which was brought up. Centralized tax structure in the form of GST was brought up. As you know that there is 18% of GST which is imposed upon the education sector in India. And after that comes 102nd Constitutional Amendment Act, through which the constitutional status has been given to National Commission for Backward Classes. However, earlier the Commission for Backward Classes was a statutory body, but however now it has been granted the constitutional status. Earlier it was under the Ministry of Social Empowerment and Justice, but now it has a constitutional status. And then after that comes 103rd Constitutional Amendment Act, which has given 10% reservation to the economically weaker section of our society, which includes the general category as well. So for the first time the weaker section of general category has been given the reservation, 10% reservation through 103rd Constitutional Amendment Act. But however, there are certain conditions which you need to qualify before applying for that 10% reservation. Like you must be having an annual income less than 8 lakhs per annum. Along with that, the land holding that you would be having, the property that you are having, it should be less than 5 acres. Then you are eligible to get that 10% reservation. So now I must take your attention to the 104th Constitutional Amendment Act, which is also known as 126th Constitutional Amendment Bill, which was recently brought up. What happened under this? What has happened? What changes it has brought up is, like, it has amended Article 334 of the Indian Constitution, and now the seats have been reserved for STs and SCs in Lok Sabha and legislative assemblies. पहले भी seats reserved थी SC STs के लिए for Lok Sabha and legislative assemblies of the state, but वो expire हो रहा था in 2020. So now its duration has been increased from 2020 to 2030. Now there was another thing as well, like you must be having knowledge about that the 2 seats were reserved for Anglo-Indians priorly by the president in Lok Sabha, and in legislative assemblies the same seats were reserved, which was one for Anglo-Indians by the governor. Governor state में रिजर्व करते थे, प्रेसिडेंट सेंट्रल मतलब लोकसभा में 2 सीट्स रिजर्व करते थे एंग्लो इंडियंस के लिए. जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है कि कुछ स्टेट्स थी जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब में एक एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेटेड थे. तो उसको भी अभी स्क्रैप कर दिया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू. तो सीट्स जो ST SCs के लिए रिजर्व थी वो एक्सटेंड हो गई हैं 2030 तक, पर एंग्लो इंडियंस वाला कॉन्सेप्ट को ज़ीरो कर दिया गया है. तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें याद रखना चाहिए जब भी हम एंट्रेंस में बैठें. उसके बाद हम आ जाते हैं रिजर्वेशन प्रमोशन. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा गया कि जो 3% का रिजर्वेशन है वो जो पीपल हैं विद डिसेबिलिटीज़, लाइक जो दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों में 3% उनके लिए सीट्स रिजर्व कर देनी चाहिए. और उसके ऊपर एक एक्ट भी है 1995 का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो कि इस सब चीज़ों से डील करता है. तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या प्रमोशन में 3% सीट्स, 3% रिजर्वेशन हैज़ बीन ग्रांटेड टू पीपल विद डिसेबिलिटीज़. Now let's come to one of the most important reservation, that is regarding the economically weaker section, which I discussed earlier as well. इसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके उसमें
रिजर्वेशन दे दिया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल कैटेगरी को। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर फ्री वेदर टू इम्प्लीमेंट 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन जॉब्स एंड एडमिशंस। मतलब उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स के डिस्क्रिप्शन पे है, अगर वो इसको करना चाहें इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से इसको लाया गया था। जॉब रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक जजमेंट में रिसेंटली इन 2020 आई गेस कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट विच इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A। तो यह फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आईपीसी में जिसका वर्णन होता है, दैट इज वेरी मच इट इज लाइक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट इन आईपीसी, पेरोल। पेरोल दोस्तों क्या होता है? पेरोल ये होता है कि कोई भी, जैसे आपने संजय दत्त का केस सुना होगा तो उन्हें पेरोल पे रिलीज किया जाता था। तो ये कब होता है? जैसे कि कोई प्रिजनर है, उसको 10 साल की सज़ा दी गई है, पर उसकी हेल्थ कंडीशन या तो ख़राब है या फिर उसको बिहेवियर को देखते हुए उसको 1-2 महीने की पेरोल दे दी जाती है, जिससे कि आप जाइए बाहर थोड़ा अपने दोस्त से, मतलब जो भी रिश्तेदार है या कोई इंपॉर्टेंट काम है उसको करके वो वापस आ पाएँ जेल में वापस। पर इसके दौरान जैसे 10 साल की सज़ा है और 2 महीने आप बाहर रहे हैं पेरोल पे, तो उसको माइनस नहीं किया जाता, उसको डिडक्ट नहीं किया जाता है। पर पेरोल तब आपको ग्रांट नहीं होती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन्ड है, अगर आपने मल्टीपल मर्डर्स किए हो, तो एक से ज़्यादा अगर आपने मर्डर्स के लिए आप कन्विक्ट हुए हैं तो उसमें आपको पेरोल नहीं दी जाती है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है फुल लॉक का। फुल लॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कि आपको लंबे समय की इम्प्रिजनमेंट दी गई है, जैसे बहुत 15 साल 20 साल एटसेट्रा की दी गई है, तो जिससे कि आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर सही रहे और आपके सोशल टाइज जो कि हैं आपकी फैमिली के साथ वो मेंटेन रहें, तो आपको फुल लॉक दे दिया जाता है। पेरोल एक राइट नहीं है, पर फुल लॉक एक राइट है जो कि प्रिजनर्स को दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम बहुत ही, जिसके ऊपर बहुत सारा आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें हुई, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो भी इंडियन, मतलब जो भी सिटीजन्स हमारी कंट्री में आए हैं जो कि इन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, जो कि इंडिया में माइग्रेट किए, किस वजह से? बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, मतलब उनको इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था उनकी रिलीजन की वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, और उन्होंने माइग्रेट किया है और वो इस रिलीजन, इस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको भारत में सिटीजनशिप दी जाएगी। और उसके लिए वो जो सिटीजनशिप दी जाएगी वो प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन के थ्रू दिया जाएगा। देयर इज़ अ डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप। तो प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन के थ्रू उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी और उन्हें 5 साल ये प्रूव करना होगा कि वो 5 साल से हमारे देश में ही रह रहे हैं माइग्रेट करके। उन्हें 11 साल नहीं, उन्हें 5 साल का ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो 5 साल से हमारे देश में हैं। पर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं लोकसभा स्ट्रेंथ के बारे में, जिसके बारे में प्रणब मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ही ऑल्सो सेड कि द लोकसभा सीट्स शुड बी इंक्रीज टू 1000 rather than present 543, मतलब 543 से ना करके इसकी सीट्स को बढ़ा देना चाहिए 1000 तक। और अभी करंट में जो स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है वो 543 है, जिसमें से कि 530 जो सीट्स हैं वो स्टेट्स को एलोकेट की गई हैं और बाकी जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ को, मतलब 13 जो सीट्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ की हैं और 530 जो हैं वो स्टेट्स को दी गई हैं। आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा शुड नॉट एक्सीड 550 सीट्स, मतलब 550 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद रखना है वो ये है कि श्री अरविंद बोबड़े जी को नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस, 47th चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री, एंड ही हैज़ बीन चूजन ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ सीनियोरिटी। सीनियोरिटी का मतलब ये नहीं है कि उनकी एज कितनी है, सीनियोरिटी देखी जाती है कि कितने समय से वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और उनका नाम रिकमेंड किया था पूर्व CJI रंजन गोगोई जी ने टू द प्रेसिडेंट। एंड ऐसे आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि
इनको द चीफ जस्टिस रिकमेंड्स द नेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ अनदर कमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय इन कंसल्टेशन विद द अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट फिर चीफ जस्टिस एक नियुक्त कर देते हैं। और सीनियरिटी जो डिटरमाइन होती है वो एज से नहीं डिटरमाइन होती। सीनियर मोस्ट जज जिसको बनाया जाता है चीफ जस्टिस, वो उस बेसिस पे होती है कि कौन कितने समय से सुप्रीम कोर्ट का जज की तरह नियुक्त है। और एक बात याद रखिएगा कि इनको हटाने का तरीका, चीफ जस्टिस को हटाने का तरीका बिल्कुल एक सुप्रीम कोर्ट जज की तरह है। ही कैन ओनली बी रिमूव थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकैपेसिटी मतलब अगर वो केपेबल नहीं है टू होल्ड दैट पोजीशन, और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, अगर उनका बिहेवियर सही नहीं था उस बेसिस पे भी उनको इम्पीच किया जा सकता है। एंड टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, मतलब 65 साल की उम्र तक वो उस पोस्ट को होल्ड करते हैं। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे, राइट टू प्रोटेस्ट, जिसको जैसे कि अभी जामिया इस्लामिया में कुछ प्रोटेस्ट किया गया था और उसके बाद पुलिस उस कैंपस में घुस गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और बहुत सारी इसके ऊपर चीज़ें चली न्यूज़ में भी और बाकी जगहों पे। तो उस समय कहा गया कि राइट टू प्रोटेस्ट है, मतलब सब बच्चों का या बाकी जो भी इंसान करना चाहे वो राइट टू प्रोटेस्ट है, जो कि आपको भी पता होगा कि आर्टिकल 19 में हमें ग्रांटेड है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। बट हाउएवर देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इस राइट पे, जिससे कि हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जिस असेंबली से ख़राब ना हो। मतलब आप करिए प्रोटेस्ट, पर उससे हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे कोई हार्म नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन जो हमारे हैं बाकी स्टेट्स कंट्रीज़ के साथ उस पर कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी ये मेंटेन रहनी चाहिए जब आप प्रोटेस्ट करें। ऑल्दो यू हैव बीन ग्रांटेड दिस राइट टू प्रोटेस्ट, बट हाउएवर इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। अब आ जाते हैं सेक्शन 144 ऑफ CRPC। सेक्शन 144 ऑफ CRPC डील्स विद अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है कोई भी एक ऐसी असेंबली को पाँच और पाँच से ज़्यादा लोग जब एक साथ असेंबल हों और उनका ऑब्जेक्टिव जो हो उस असेंबली का वो अनलॉफुल हो। अगर वो उनका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है और पाँच से ज़्यादा लोग असेंबल हुए हैं तो उसको अनलॉफुल असेंबली कह दिया जाता है। सेक्शन 144 को आप 2 महीने तक लगा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जिसको हम कर्फ्यू कह देते हैं कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, और इसको 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन आप 6 महीने तक लगा सकते हैं किसी भी स्टेट में कर्फ्यू या किसी भी एरिया में कर्फ्यू। और इसका वायलेशन, अगर आप सेक्शन 144 कर्फ्यू लगा हुआ है और 5 से ज़्यादा लोग आप असेंबल होते हैं और आपका उसके बाद असेंबल होने के बाद आपको उसके लिए सज़ा दी जा सकती है, और वो सज़ा कितनी है? मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर सच एक्ट इज़ 3 years। और अगर आप पुलिस वाले को रोकते हैं while he is trying to break up an unlawful assembly, उसके लिए भी आप पनिशेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट रीजनल बेंचेस के ऊपर बहुत सी बातें हुई अभी हाल ही के दिनों में। उसमें ये कहा गया है लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कि जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अभी खाली दिल्ली में है, तो क्या होता है कि इंसान जो दूसरे स्टेट्स में रहता है उसको काफ़ी दिक्कतें आती हैं सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने के लिए। तो अब ये कहा गया है उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिल्ली में तो रहेगी और बाकी जगहों में और रीजन्स में भी एक सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बनाई जाएं, नियुक्त की जाएं, जैसे कि चेन्नई में की जाए, कोलकाता में, मुंबई में, हैदराबाद में, जिससे कि जो अपीलेट वर्क है, जो हाई कोर्ट से हम अपील में जाते हैं तो हाई कोर्ट से उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है दिल्ली में, तो अपीलेट जो जुरिस्डिक्शन है वो उन बेंचेस को दे दी जाए, जिससे कि बाकी डिफरेंट रीजन्स में जो लोग रह रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट को ईजिली एक्सेस कर पाएँ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच पाएँ। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल 370 पे, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। इससे क्या हुआ है, अब जो अमेंडमेंट हुआ है, पहले 370 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको समझ लेते हैं। इससे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। पर फ़र्क क्या है दोनों में? जम्मू एंड कश्मीर को जो बनाया गया है यूनियन टेरिटरी, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, पर हाउएवर जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे नहीं होगी। और साथ ही साथ जो 10% EWS को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, अब वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा। जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो 10% का कोटा दिया गया है वो वहाँ के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा।
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरीके से अब लागू होगा। रणबीर पीनल कोड था पहले, पर अब आईपीसी से वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये चेंजेस लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं आर्टिकल 370 के अमेंड होने के बाद। उसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जिसको अभी रिसेंटली लाया गया। उसको लाने की वजह ये थी कि जिससे कि जो लोग सेंट्रल मतलब जो आर्म फोर्सेस में हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर पोस्टेड हैं एम्बेसीज में या बाकी जगहों पे, वो अपनी वोट कास्ट नहीं कर पाते थे। तो अब क्या हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने बैलेट के थ्रू आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं कहीं और हैं, तो वो भी वोट अब कास्ट कर पाएंगे। इसका ये बेनिफिट हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के आने से। उसके बाद हम आ जाते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब अभी लाया गया है, इसमें अमेंडमेंट हुई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जैसे कि आप जानते हैं कि 2005 में आया था। उसमें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं जो कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों पे अपॉइंटेड होते हैं। पहले आरटीआई एक्ट के अंदर जो 2005 था उसमें टर्म ऑफ ऑफिस उनका फिक्स था इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स का एंड चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, जो कि था 5 साल। पर अब अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होना चाहिए। 5 साल नहीं, वो कितना भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि उनका कितना टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स का। और उनको जो सैलरी और अलाउंसेस दिए जाएंगे दोनों को, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को, दैट वुड बी इक्विवेलेंट, वो उसके बराबर होंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जितनी सैलरी दिया जाता है वही उतना चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को दिया जाएगा। और इलेक्शन कमिश्नर्स को जितनी सैलरी दी जाती है सेम सैलरी दी जाएगी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को। ये बदलाव आए हैं, ये 2 बदलाव आए हैं अमेंडमेंट होने के बाद, जो कि 2019 में आई है। एक और अमेंडमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है वो है ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल, जो कि 2019 में आया। ह्यूमन राइट्स में तब्दीली की गई, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद कोई भी द पर्सन हु हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन अब कोई वो भी बंदा हो सकता है जो कि पूर्व में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहा हो। और जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होगा वहाँ पे जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन। और पहले जो स्ट्रेंथ कमीशन की, चाहे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या सेंट्रलाइज ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, पहले उसकी स्ट्रेंथ थी 2, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 3। अब 3 लोग होंगे और उनमें से एक कंपल्सरीली वुमेन होगी, मतलब 3 में से एक वुमेन रहेंगी। और इनका जो टर्म था, इनका जो ड्यूरेशन था वो पहले 5 साल था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, अब उसको घटाकर 3 साल कर दिया गया है। और उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें बदलाव आया है, अब वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, मतलब जो चेयरपर्सन होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। अब आ जाते हैं लास्ट हमारी पीपीटी पे, जो कि फ्री लीगल एड। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए में डीपीएसपी है कि एवरीवन हैज़ एन एक्सेस टू द लीगल असिस्टेंस, जिससे कि हर बंदा जो कि गरीब है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वर्क करता है या इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, सबको जो ये एक वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट होती है कि उसको एक वकील दिया जाए। तो अभी एक रिसर्च कंडक्ट हुई पैन इंडिया के थ्रू, उसमें ये बोला गया कि लोगों को जो ऐसे काउंसिल दिया जाता है लीगल एड के थ्रू, उन पर भरोसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट लीगल अफेयर्स जो मैंने आपसे आगे डिस्कस किए हैं, और आगे भी इसके आगे अब मैं अगली वीडियो, अगली पीपीटी में और बातें कहूँगा। अगली वीडियो का आप वेट करिए उसके लिए। And I will be trying to cover all the important things which are necessary for any legal aspirant. If you want to get in touch with me, you can get in touch with me on my WhatsApp number, which is 9818098138. Thank you so much, friends. Take care.